Hello everyone, good evening. I welcome you all to the soapbox of the candidate of General Secretary of Cultural Affairs. Our candidate for today is Aditya Sisodia. I am Janvi and I will be moderating the session. Our panelists include Kanishk Malkan, Ashish Chavan, Bipin Kamble and one more panelist will be joining us soon, Kartikeya Gaur. Before we start, let's go over the flow of today's soapbox. We will start with the opening statement from the candidate which will have a maximum of 3 minutes time. Moving on, we'll move on to the manifesto debate where our panelists will ask some questions to the candidate regarding their manifesto. After the manifesto debate gets over, we'll move on to the topic debate where 2 or 4 topics will be given to the candidate beforehand. They will be asked to pick chits and then they will be asked to put forward their view on the topic for 2 or 3 minutes. After the topic debate, we'll move on to the background check where the moderator will ask 2 questions to the candidate based on their previous background. And then after that, we'll have a Q&A session where Insight will put forward their questions and we'll also have some questions from the audience. And then we'll finish the session with the closing statement. So let's start with the opening statement, Aditya. Can you please share your manifesto with the panel? Okay, let's start. Hello everyone. Hello. Hi audience here. Hello panelists. Good evening. Good evening Insight. So मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब दीजिएगा। क्या आप लोगों ने कभी कल्चरल्स में पार्ट लिया है? फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने कभी कल्चरल्स में पार्ट लिया? मैंने भी लिया। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य सिसोदिया है एंड मैं 3rd ईयर अंडर ग्रेजुएट का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। एंड इस 3 साल की जर्नी में आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं देखा ही होगा। एज अ फ्रेशमैन में आप लोगों ने मुझे कल्चर्स में एक्चुअली पार्टिसिपेट करते देखा होगा, या तो आपने 2nd ईयर में मुझे एज अ कॉमेडी कॉन्स कन्वीनर देखा होगा, या तो आपने 3rd ईयर में मुझे एज अ इंस्टीट्यूट में नॉमिनी देखा होगा। इंटर कॉलेज फेस्ट में कहीं आपने मुझे मल्हार का कंटीजेंट लीडर देखा होगा, या तो आपने पिछले 2 साल के इंटर IIT कल्ट मीट में मुझे IIT बॉम्बे को रिप्रेजेंट करते देखा होगा। फ्रॉम विनिंग गोल्ड इन इम्प्रो बैटल टू विनिंग सिल्वर इन स्टैंड अप कॉमेडी, मैं कहीं आप लोगों के बीच में से आया हूँ। पर आज मैं यहाँ उन सब के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू ऑल एज अ कैंडिडेट ऑफ जनरल सेक्रेटरी कल्चरल अफेयर्स। आपके एक्सपीरियंसेस को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी कल्चर्स को लेके उम्मीदों को मैं यहाँ पर इस टेबल पे रखने आया हूँ और ये बताना है कि इंस्टीट्यूट का हर एक बच्चा अपने घर से, अपने बैकग्राउंड से एक कल्चर लेकर आता है। और मैं चाहता हूँ कि IIT बॉम्बे कल्चर्स आपको वो सारी सुविधाएं, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो आपको शायद कहीं नहीं मिलते। आज अगर शायद आप यहाँ से जाते हैं तो आप यहाँ से कुछ सीख लेके जाए, कुछ टैलेंट लेके जाए और कुछ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस लेके जाए। और मैं यहाँ पर अपने विजन को रखने आया हूँ। इसी विजन के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई एम एविंग टू रिवाइज ट्रेडिशंस, रीडिफाइन कल्चर एंड राइज टुगेदर। थैंक यू सो मच। Thank you, Aditya, for the opening statement. So let's move on to the next part, the manifesto debate section. I hand over to you, panelists. Please start with your questions. Hello, Aditya. My first question is on your first point of cultural search, Indian Art Convention. So you propose a large-scale cultural event spanning multiple genres. Given the limited cultural budget, logistics and the past attendance issue at the similar niche events, how will you ensure sustained audience engagement, high-quality workshop and adequate funding? राइट, सो आई हैव सिंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन जो मैं अपने ग्राउंड वर्क से गैदर किए, मैंने रूट्स के लोगों से, मैंने फोक आर्ट्स के जनरल लोगों से और मैंने रीजन लोगों से बात की है। इनफैक्ट मैं जब ये पॉइंट ब्लैक बॉक्स में लेकर गया था तब मैंने वहाँ पर अपने अपने स्टॉल्स के अपने जो भी परफॉर्मेंसेस होने वाले उन सब का हेलो सो या अबाउट द स्टॉल्स एंड वर्कशॉप्स,
देयर विल बी अगेन डिफरेंट स्टॉल्स रिप्रेजेंटिंग द रीजनल फोक आर्ट्स जो भी रिनाउंड नहीं है इंडिया में, और जो भी हम यहाँ पर शोकेस करते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, वो सबसे डिफरेंट है और कहीं ना कहीं रीजन्स में अभी भी ज़िंदा है। उनके लिए देयर आर नॉट मच हाई बजट स्टॉल्स एंड वर्कशॉप नीडेड। आप यहाँ पर क्रिएटिव पेंटिंग्स और ये सब करा सकते हो। अगर आप कहीं राजस्थान से तो आपने फड़ सुना होगा, अगर आप कहीं वेस्ट बंगाल से है तो आपने पदचित्र सुना होगा, एंड आप कहीं तेलंगाना से आपने चेरियल सुना होगा। ये सब बहुत नॉर्मल आर्ट फॉर्म्स रहते हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल फड़ ले लेते हैं, जिसमें आप 30 फीट का लॉन्ग क्लॉथ लेके आप उसमें वेजिटेबल कलर से बनाते हैं। सो दीज आर एक्चुअली क्वाइट सस्टेनेबल देन द आर्ट फॉर्म्स वी यूज़ इन द इंस्टीट्यूट। एंड इसका मोटिवेशन अगेन यही है कि हमको इससे कुछ सीखने को मिलेगा एंड वी कैन यूज़ इट इन अ बेटर वे। सो आई गेस you shared about the budget part. So the main question is about the attendance. So we are catering to the niche part here. So what about the attendance and how are you planning to gain much attention for these niche arts? अग्रीड। हम यहाँ पर वो आर्ट फॉर्म्स प्रेजेंट कर रहे हैं जो शायद इंडिया में बहुत कहीं कहीं जगह पर और कुछ कुछ जगह पर होगा, बट अगेन हम जो भी आर्ट फॉर्म्स और ये सब लेकर आ रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस करनी है, वो ओपन टू ऑल है। एंड जब हम बताते हैं कि ये आर्ट फॉर्म्स और ये क्रिएटिविटी हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैंने बात की तो रीजन के कुछ लोग हैं जो एक्साइटेड हैं कि हम ये फैशन अटायर में, हम ये स्टोरी टेलिंग में, हम ये फोक में ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम ये डांस ये सब करना चाहते हैं। जब मैंने अगेन क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स सोसाइटी से बात की, तब उन्होंने बताया कि ये सब करने के 2 तरीके हैं। वी विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आपके पास इनफ लोग हैं जो ये सब सिखा सकते हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, या तो आप अगेन यूट्यूब चैनल्स और इन सब से एक कोरियोस परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसमें वी डोंट नीड मच ऑफ ट्रेनिंग। प्लस अगर जहाँ तक स्मॉल जॉनर्स की बात आती है, स्मॉल नीच लोगों की बात आती है, तो हम पूरे इंस्टीट्यूट के लोगों को वो नीच जॉनर्स को से अवेयर करा रहे हैं, प्लस वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So for such a large scale event, do you plan to get additional funding from the culturals budget, or do you plan to get, say, sponsorships or funds from outside the institute? Right. So dividing it into the 2 parts. First, the workshops and stalls which I am planning in the noon to evening time. I have talked with the artisans. It's a company which does these folk arts in the Mumbai, and they know these local brands which are they were quite excited to do these things. And there are different places and government schemes, जैसे कि for example, can I take brand names? Can I take government schemes and brand names? I don't think you should mention brand names. Okay, so there is a government scheme जिसमें रूरल वुमेन्स को encourage करते हैं कि वो ये सब आर्ट फॉर्म्स करें और वो सब प्रेजेंट करें, स्टॉल करें, एंड वो सब यहाँ पर लेकर आए। सो उसमें कोई एडिशनल बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट स्कीम्स और उनके कोलैबोरेशंस में। एंड अप टू द परफॉर्मेंसेज, अगेन देयर आर सम लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड टू द परफॉर्मेंसेज। अप टू द जॉनरास, आई गेस वो जॉनरा वाइज एंड द क्लब वाइज केटर हो सकती है। So I have just one last rebuttal on this. As we all know, India is a country with a lot of diverse cultures and traditions, and I don't really expect you that one event will be. I'll just repeat. So India has a lot of cultures and traditions. It's a quite diverse nation, and one event will not be able to sufficiently cater to every single culture. So there will definitely be a lot of communities and a lot of traditions that will be left out from this event. How do you ensure that there is no partiality or certain members of the communities don't get enraged due to less visibility or representation? डेफिनेटली, वेरी ट्रू। आई एग्री दैट इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन, और यहाँ पर अलग अलग फोर्ट्स के अलग अलग जॉनरास में मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे इवेंट्स कराए जा सकते हैं। अब इसमें फिजिबिलिटी यही है कि एज आई प्लान आई विल स्टार्ट द स्टॉल्स एंड वर्कशॉप के स्काउटिंग इन द समर्स टाइम, और उसके बाद में परफॉर्मेंसेस ये सब का सितंबर टाइम से प्लान करूँगा, जिसमें आई विल पुट अ सर्विस कि आप किस जगह से बैकग्राउंड से आते हैं और उस बैकग्राउंड में क्या क्या कल्चर्स, क्या क्या फोक्स होते हैं। उस हिसाब से आई विल जस्ट चेक कि कितने नंबर ऑफ लोग ये पार्टिसिपेट करने को रेडी है। अगर अलग अलग लोग से बहुत सारे जॉनर्स भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन मेक देम पार्टिसिपेट। इवन आई हैव सीन एग्जाम्पल्स, आई हैव जस्ट गिव यू केरला में
देयर इज़ अ फेस्टिवल जहाँ पर वो अपना फोक सॉन्ग होता है जो कि बहुत सेलिब्रेटिव होता है, वो प्रेजेंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ शैडो टेलिंग, वो भी द पपेट्स दे में. सो इसमें वी केटर मल्टीपल जॉनरास इन जस्ट वन फोक आर्ट. डूइंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन cater most of it, and if the event is successful, next time say we can again present the different other folk arts forms. Okay, panel, are you satisfied with the answer? Yeah, we'll move on to our next question now. So this question was regarding your cultural search point, Cult Yatra. So club trips to these cultural institutions sound really great in theory, but arranging institute permissions, transport, accommodation is a lot of luck. So how do you So these club trips, they need a lot of institute permissions, transport and accommodation. And how do you plan to execute this without running into a lot of delays or last minute sort of cancellations? Yes, so I'll start with कि the motive of the club trips is to give more exposure to the people. Since हम institute में रह के institute के events और ये सब कराते हैं, we might get saturated अगर हम ज़्यादा think out of the box नहीं करते हैं. That's why मैंने एक club trips रखी थी. अब इसके लिए when I gathered the information for the people जो same तरह के problem से गुजर रहे हैं, जैसे कि there is Kritika, I am allowed to say these names, right? जिनसे मैंने ground work किया. Won't mention the names. There is a space club of IIT Bombay. जो ये क्लब ट्रिप्स लेकर जाता है और कराता है. इवन मैंने एडवेंचर क्लब इन सबसे बात की थी. सो द परमिशन दैट आर रिक्वायर्ड जो मैंने गैदर की है कि आपको बेसिकली फॉर्म निकालने पड़ते हैं. उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो भी वहाँ के लोकेशन की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उतना लिमिट रखते हो, उतना कैप रखते हो, और उसके बाद आप उतने लोगों को फाइनलाइज करते हो. उतने फाइनलाइज करने के बाद आप डीन से एक साइन ऑफ ले लेते हो एंड देन यू जस्ट गेट द परमिशन. अगेन फॉर्म पे यू गेट अ डिक्लेरेशन कि आपको जो भी कंसर्न्स ये सब होते हैं उसके जिम्मेदार आईआईटी बॉम्बे या फिर आईसीसी नहीं रहेगा, वो आप खुद रहेंगे. एंड उसके बाद जब ये लोग फाइनलाइज हो जाते हैं तो फिर एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है अबाउट द हेल्थ इशूज एंड कंसर्न्स. आफ्टर टेकिंग द साइन ऑफ ऑल द परमिशंस आर डन. इसके बाद ट्रांसपोर्ट इश्यूज आते हैं, ट्रांसपोर्ट के थिंग्स आते हैं. अगर आप मुंबई में अलग अलग कल ट्रिप्स पे जा रहे हो सो ट्रांसपोर्ट का देयर इज़ ओनली बस थिंग्स, और अगर आप मुंबई से कहीं बाहर जा रहे हो तो अगेन यू हैव टू अकोमोडेट द ट्रेन थिंग्स. सो विल प्लान कि अगर हम मुंबई के कहीं जा रहे हैं तो इट विल बी अरेंज्ड इन 1 month, एंड ट्रैवलिंग फॉर आउट ऑफ द मुंबई विल हैव टू प्लान प्रायर 3 months prior. So Aditya, I have a rebuttal for you. So have you accounted for academic schedules and hostel permissions, given that many students may be unable to participate due to their coursework and deadlines? Yes. So since academic schedules का there are some hectic times, there are some quizzes times, and there are the exam जिसमें obviously dead weeks और इन times पे हम नहीं जा सकते, but definitely कुछ time periods और खाली टाइम मतलब हमारे शेड्यूल में एक जगह होती है जहाँ पर हम ये क्लब ट्रिप करा सकते हैं. अगेन देर आर 2 different कैलेंडर्स जो चलते हैं, पीजीज़ के, यूजीज़ के. सो उसके हिसाब से भी हम गैप्स देख के इवेंट्स करा सकते हैं और क्लब ट्रिप्स करा सकते हैं. But you already know that कि हमारा जो कल्चरल्स का कैलेंडर है वो ऑलरेडी काफ़ी पैक रहता है, स्पेशली क्लब्स के, एंड काफ़ी इंडिपेंडेंटली इवेंट्स चलते हैं. तो इफ़ यू आर टेकिंग दिस गाइज ऑन ट्रिप तो वोंट दैट अफेक्ट आवर जो हमारे पहले से इवेंट्स होते आ रहे हैं? अग्रीड, बट आई बिलीव कि हमारे जो भी क्लब के इवेंट्स होते हैं, हमारे जो भी डिफरेंट जॉनर्स के इवेंट होते हैं, से आई अग्री कि आईसीसी कैलेंडर बहुत पैक्ड है और हमारे पास बहुत सारे इवेंट होते हैं. बट सिंस हमारे पास डिफरेंट जॉनराज है जिसको हम केटर करते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट पीपल जो उस जॉनराज के रहते हैं, या इनफैक्ट कैलेंडर भी हमारा कुछ ऐसा रहता है कि वी द पीपल गेट इनफ बैंडविड्थ बिटवीन द क्लब इवेंट्स जो भी उनके रेगुलरली होते हैं. सो अगर कोई क्लब पर्सन है जो कि इस ट्रिप्स में जाना चाहता है एंड दे आर रियली इंटरेस्टेड, तो फिर अगेन दे कम अंडर द पर्टिकुलर मेंबर्स जो उस क्लब के रहते हैं, कम्युनिटी के रहते हैं. अगर वो ओपन फॉर ऑल है सो देर इज़ नो सच पर्सन जो आईसीसी के हर एक इवेंट में पार्ट ले रहा है और फिर उसको एक भी ट्रिप जाने का मौका मिल रहा है. So you have mentioned that the club trips, right? So how many trips have you thought of, and have you located the locations in which you are planning to visit?
राइट, सो डिफरेंट लोकेशंस पे इनसाइड मुंबई और आउटसाइड मुंबई जो हम जा सकते हैं, मैंने बाकी क्लब सेक्रेटरीज और बाकी जो क्लब के मेंबर्स हैं उनसे बात की थी कि अगर आपका स्पेसिफिक क्लब है तो आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो जहाँ से आप कुछ लर्न कर सको, जहाँ से आप कुछ प्रोफेशनल एक्सपोजर ले सको और कुछ आर्टिस्टिक नेटवर्क बना सको. सो सिंस मैंने बात की थी लिटराटी से, सो दे टोल्ड मी कि दे कैन गो टू एशियाटिक लाइब्रेरी एंड द डिफरेंट जॉनरास कैन गो टू प्लेसेस लाइक फिल्म सिटी एंड फूड इंडस्ट्री विजिट्स, पृथ्वी थिएटर्स एंड शोज एंड Jahangir Art Gallery and NMECC Art Museums, etc. So in your point you mentioned these trips will enhance the experiential learning and provide artistic exposure. So how will you actually measure and ensure that people going to these trips are actually learning something about culturals and bringing that back to the institute? And it should, just not become another it should just not become another outing for someone just for like fun. डेफिनेटली हियर आई बिलीव कि जो भी इस जो हेलो चेक या हियर आई बिलीव कि जो भी इस जॉनर के पर्टिकुलर लोग होते हैं, जब वो सीनियर्स एंड इन सब के साथ जाते हैं, दे लर्न समथिंग कि हाउ दैट कल्चर हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स. वहाँ पर वो जाके देखते हैं कि हाउ दैट थिंग्स वॉज यूज टू बी डन इन द पास्ट टाइम एंड अभी के टाइम पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज है जो उस कल्चर को आगे बढ़ा रही है. सिंस हम यहाँ पर फ्लैगशिप्स और ये सब कराते हैं, after going to that cultural tips we can open up some minds and we can get some fresh ideas about the flagships we do in the institute. So Aditya, I have a question for you on art hills in your cult social. So mental well-being through art sounds impactful, but how do you measure success? Do you have any data-driven methods to assess if actually helps student to manage stress? Right. So here I'll mention the information I got from a wellness center in the institute. It says in the festo, I have talked with student wellness center, their instructor, who has told me कि there are different activities that can do. Even they recommend activities of culturals to enhance the mental health. Now how I am planning to do this, different type of cultural activities are supposed to be done in such a way कि वो आपका एक रिलैक्सेशन बन जाए, वो आपका एक प्रेशर हैंडलिंग का एक तरीका बन जाए. और ये एक्टिविटीज़ अगर आप एक इंस्ट्रक्टर से सीखते हैं, उसके बाद जब भी आप थ्रू आउट द ईयर या फिर कभी भी लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं एंड थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हैं. नाउ अबाउट द डेटा, आई हैव रिसर्च्ड विद दिस एंड आई हैव गेट टू नो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म्स में देयर आर थिंग्स जो आपको हेल्प करती है. जैसे कि एज अ जनरल नॉलेज में बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर स्ट्रेस इन द एग्जाम्स एंड ये सब, तो फाइन आर्ट्स में एक फॉर्म है विच इज़ कॉल्ड इमोशनल रिफ्लेक्शन, जिसमें आप आँख बंद करके मेडिटेट करके यू ड्रॉ ऑन द पेपर कि आप क्या क्या फील कर रहे हो. दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि डांस में हो जाता है फ्री बॉडी डांसिंग, वेर यू फ्री आउट योर बॉडी एंड जस्ट डांस. ये सब एक्टिविटीज़ अगर आपको SWC से मिले और आपको एक इंस्ट्रक्टर से मिले जो आपको ये सब बताए, सो यू कैन इम्प्लीमेंट इट इनटू योर डे टू डे लाइफ और आप इससे अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ को भी बेटर कर सकते हो, मेंटल हेल्थ को भी एनहांस कर सकते हो. Yeah, but I asked, do you have any data-driven insights on this? Like, do you have any numbers or? A number? Well, talking to ma'am gave me the data कि approx there are 3 to 4 students over the years जिनको ये cultural activities recommend करते हैं. Now since this is an initiative, what I have planned is कि जब ये sessions होंगे midsummer and के बाद, there will be at least 25 to 30 students जो ये sessions attend करेंगे and they'll get to learn something out of it. So there is no such psychological data to me yet, but मैंने तो ऐसे प्लान किया. And yeah, so if very few students engage with these events, would you still this consider as a successful? डेफिनेटली अगर कुछ लोग भी यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं एंड देन दे स्प्रेड द वर्ड्स टू 5 more फ्रेंड्स इन देयर विंग इन देयर इंस्टीट्यूट जो भी आज शायद किसी फैमिली इशू से या फिर किसी तरीके से अच्छे से अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे, सो दे गेट द लर्निंग और 25 to 50 एंड देन 75 एंड इट विल स्प्रेड द वर्ड्स. हाँ, तो जो भी अभी तुमने इवेंट्स मेंशन किए जो आर्ट थेरेपी वाले, तो SWC ये इवेंट्स ऑलरेडी करवाता है. हाउ योर इवेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस?
Hello, check this. Yeah, so can you please, okay, your question is कि SWC ये सारे इवेंट्स कराता है एंड तो आई एम सेइंग कि ये सारे एग्जांपल्स हैं इन द आर्ट फॉर्म्स, ये मैंने रिसर्च किए हैं कि इन चीज़ों से एनहांस हो सकती है. अगेन देयर इंस्ट्रक्टर हैज़ डिफरेंट मैनी अदर थिंग्स जो कि वो प्रोफेशनली बाहर से बुलाते हैं एंड वो एक्टिविटीज सब करते हैं. जस्ट अ क्लैरिफिकेशन ऑन माय क्वेश्चन. मैंने ये पूछा था कि जो भी अभी तुमने इवेंट्स बताए जो आर्ट थेरेपी वाले, तो जैसे जो न्यूज़ आए थे वहाँ पे रिसेंटली अभी SWC ने इवेंट्स करवाए थे, तो माय क्वेश्चन इज SWC ऑलरेडी ये सारे इवेंट्स करवाता है, तुम्हारा इवेंट अलग कैसे रहेगा एंड लाइक व्हाट वैल्यू इट विल ऐड इन द इंस्टीट्यूट कल्चरल काउंसिल? ओके, सो फॉर क्लैरिफिकेशन, वो जो इवेंट्स कराते हैं दैट आर, जो आप न्यूज़ की बात करो, दैट इज द पपी इवेंट्स एंड द 16 के सामने जो रिलैक्सिंग वो सब इवेंट्स होते हैं. कल्चरल्स को रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं दैट आर टारगेटेड टू द स्पेसिफिक पर्सन्स जो उनके पास आते हैं एंड उनको इवेंट्स कराते हैं. इसका पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इवेंट्स, अबाउट द एक्टिविटीज़ एंड अबाउट द स्टूडेंट वेलनेस सेंटर इटसेल्फ, कि हम ये जनरल लोगों को बताएंगे एंड जनरल ऑडियंस को बुला के ये सब कवर करेंगे. एंड इनफैक्ट आई हैव एडेड कि यहाँ पर 3 लोग होते हैं. एक तो जिनको बताया गया है कि ये सब एक्टिविटीज़ करनी है, दूसरे जो हमारे इवेंट्स में हमारे क्लास में आते हैं हम उनको अवेयर कर रहे हैं, एंड तीसरे जो अपने रूम पे बैठे हुए हैं. सो सिंस आर मल्टीमीडिया बॉडी विल कैप्चर दीज इवेंट्स, कैप्चर दीज एक्टिविटीज़ एंड विल पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, सो दिस विल इंक्रीज द अवेयरनेस इन जनरल. The number of rebuttals are over. You can move on to the next question. Okay, Aditya, my question is on your point for reflex. So, flex recycling has been proposed a few times before, yet it hasn't been successfully implemented in a sustainable way. So, what new mechanism are you planning to introduce to ensure this becomes a success? Right, so the reflex is the idea to get down this and use it in a better way. जैसा आपने बताया कि ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, आई एग्री. ये लास्ट ईयर टेन्योर में इट वाज अ मैनिफेस्टो पॉइंट जो एट सम मोमेंट पहुंचा था हाफ वे थ्रू, जिसमें फ्लेक्सेस कलेक्ट हो गए थे, बट फ्लेक्सेस का सही से यूज़ नहीं हो पाया, फ्लेक्सेस का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, बिकॉज वी कुडंट गेट द प्रॉपर NGO कोलैबोरेटिव्स जो इन फ्लेक्सेस को यूज़ कर सके. सिंस द होल आइडिया इज़ कि आप फ्लेक्सेस को लेंगे जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में हर तरफ लगते हैं, एंड देन यू गेट अ बेटर यूज़ ऑफ इट ईदर विद द टीम जीरो वेस्ट जो कि इनको इन द मेस में, इन द कैंटीन्स में टेबल्स की तरह यूज़ करता है, और इन द गिव इट टू द NGOs जो इनको बेटर जगह पे पहुंचा सके, जैसे कि स्लम्स हो गए जो इनको कारपेट्स में और मैट्रेसेस में और रूफ टॉप सीलिंग्स में इन सब में यूज़ कर सकता है. सो सिंस आई हैड अ टॉक विद टीम जीरो वेस्ट एंड उन्होंने बताया कि ये सब रीयूज़ करने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर्स, बिकॉज ये प्लास्टिक और पेपर दोनों से बने होते हैं, सो वी कान टेक्निकली रिसाइकल इट बट वी कैन यूज़ इट इन अ बेटर अदर वेज. अगेन ये सारे फ्लेक्सेस हमारे ICC में भी यूज़ होते हैं. सिंस मैंने जब बात की थी ब्रॉड टीम इन सबसे, सो दे यूज़ अ लॉट ऑफ कार्डबोर्ड्स विच आर यूज्ड, मतलब बस हमको खरीदने पड़ते हैं और हम यूज़ करते हैं. इसकी जगह पे हमारे जो फ्लेक्सेस यूज़ हुए हैं हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एंड बेटर कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज स्टोर इट, स्टोर करने के बाद हाउ एवर द ICC नीड्स इट वी विल गिव इट टू दैट एंड द रेस्ट ऑफ इट टू द टीम जीरो एंड द प्रॉपर NGO वेंडर्स जो कि हम कॉन्टैक्ट में आएंगे with the. So you mentioned 2 bodies, both Team Zero Waste and external NGOs. So have you already contacted some NGOs or like what's the status on that? Okay, so when I had a talk with the Team Zero Waste, they told me कि there are requirements and there are different vendors जो ये सब लेके distribute करते हैं. Since I don't have the direct contact to the NGOs जिन पे पहुँचेगा, but I have contact to the vendors जो ये collect करते हैं and then they distribute to the different NGOs. So you already mentioned NGOs in your manifesto point, but if you're just sort of going to distribute them to vendors who will act as middlemen between you and the NGOs, then is your entire job as ICC just collecting the flexes in the institute, or are you doing something more than that? Okay, to the
कलेक्टिंग पार्ट अग्रीड, वी आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट ऑल द फ्लेक्सेस जो भी इंस्टीट्यूट में लगे हैं, सिंस वो सब वहीं के वहीं ख़राब हो जाते हैं एंड वहीं के वहीं डस्टबिन में पड़े रहते हैं. Collecting those is the crucial part. After that, using it and giving it to the NGOs is the secondary part, जिसपे the middlemen are through vendors, but at the end it will get to the needed people. वही मेरा aim है. And जहाँ भी इन सब की नीड लग रही है और जहाँ भी इन सब का बेटर यूज़ हो सकता है, मैं बस वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ. So, since collecting is such a crucial part, there must be some reason why this has not already been implemented by Team Zero Waste. Because institute की हर body flexes लगाती तो है. तो like I'm seeing where is the necessity for this coming? Like why hasn't Team Zero Waste sort of implemented this? Okay, so the whole problems come जब हम event कराते हैं. Event कराने के बाद we technically forget everything about the event. जो भी हमने flexes लगाए, जो भी हमने ये सब करे, ये सब जाता है फिर डस्टबिन्स में, जो कि फिर जाता है PHO के पास. PHO अगेन दे सेक्शनाइज इट, बट सिंस ये सब का अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, सो इट ऑल गोज टू द वेस्ट. एंड यहाँ पर वी आर प्लेइंग कि वी विल कलेक्ट इट बाय आवर सेल्फ, सो इट वोंट गो टू द डस्टबिन्स. दैट्स वाई इट वोंट बी कंसिडर्ड एज द वेस्ट. And through this, do you plan to collect just the flexes of ICC events or other events by other bodies in the institute as well? I won't interrupt with other bodies and other ICC. Maybe they have some 5 events with that flex on the road. So it will be just whatever is in my hand and whatever I'll get up if I like. So Aditya, my question is related to PAF murals in your hostel cultural point. So what will be the timeline for the execution of PAF murals and who will take the responsibility to execute this event? Okay, so since PAF mural is something जो old sack की wall पे कराने का plan है, it's for the publicity of the PAF. So it will happen before the PAF. अगर मैं general PAF की टाइमलाइन फ्रॉम द लास्ट ईयर लेके चलूँ, विच इज़ 31 मार्च को PAF 1 एंड 6 अप्रैल को PAF 2, जैसा कि मैंने रूल बुक में पढ़ा ऑफ द PAF. सो अगर उस टाइम से चले, सो PAF के जो भी स्क्रिप्ट्स और ये सब रहते हैं वो एंड मोमेंट तक डिलेज होते रहते हैं. दैट्स वाई आई केम अप विद दिस प्रॉब्लम कि आप एक PAF थीम वॉल क्रिएट करने में देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. That's why I ended up on the PAF का पूरा थीम, जिसमें there won't be a specific theme of the script, but you can just create how the PAF in general looks. So ये हम 31 मार्च के 1 week prior, यानी कि 6 दिन पहले कराएंगे. And डिपेंड मतलब द क्वेश्चन कि हम ये किससे कराएंगे, एट अ टॉक विद द IBs जो कि ये वॉल पेंटिंग और ये सब करती है. एंड अगेन डिफरेंट IBs टोल्ड मी द डिफरेंट वेंडर्स जो डिफरेंट में कोटेशन लेते हैं. एंड फॉर नाउ आई वोंट टेक, बट आई हैड वन जिसने सबसे कम कोटेशन पास किया था. सो आई विल गो थ्रू, मतलब आई विल कॉन्टैक्ट देम. So you're talking about the external vendors. PAF basically has lots of hostels together, right? And they have lots of people with that. So why don't you incorporate them instead of going outside? Okay, when I planned this कि मैं PAF के वॉल जब स्टूडेंट्स इन सबसे कराऊंगा, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम होकर, क्योंकि PAF में हॉस्टल्स अपना जी जान लगा के दे रहे होते हैं. एंड PAF में देर आर डिफरेंट वर्टिकल्स. अगर आप प्रॉड ट्रैम सबको हटा दो तो जितना भी पफा है, फाइन आर्ट्स है, वो पूरा प्रॉड्स बनाने में, प्रॉप बनाने में लगा हुआ है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से. सो अगर वो अपना मैं उनको एक और प्रोजेक्ट दूँ विच इज़ फ्रॉम द ICC साइड कि आपको PAF की वॉल भी पेंट करनी है, सो इट विल जस्ट एग्जॉस्ट देयर बैंडविड्थ एंड माइट डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ द प्ले. दैट्स वाई मैंने ये सोल्यूशन निकाला था कि आई विल कीप देम एज दे आर डूइंग, एज दे आर प्रैक्टिसिंग, एंड आई वोंट डिस्टर्ब हाउ देयर बैंडविड्थ इज, एंड मैं एक्सटर्नली इसको पेंट करूँ. So I would like to know who would be designing the entire art for these PAF murals, because as ICC our primary concern, our primary job is to cater to the students of the institute. So wouldn't you rather incorporate them in the process? Yeah.
So I had a talk with the Institute Photography and Finance Secretary and the Institute Design Secretary, and they both told me कि it's doable how we make the half wall of PAF with themes. But when I updated the idea कि we'll make a general PAF wall, so they agreed that कि however the PAF have looked for the over the years, we'll just incorporate that idea and we'll design that. जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, तुमने बोला जो 31 मार्च, तो यू विल बी डूइंग दिस इन अपकमिंग पैक या फिर नेक्स्ट वाले? Technically, if elected, my tenure starts in 1st of April. Okay. So मेरे हाथ में जो है that is the 2026 का पैक. You said that you cannot incorporate this idea in this path, and you want to do this in the next path, which is again not in your hands, because your tenure will be over. My tenure will be over by so this tenure will be over by 31st of March 2025, and after that, if I elected, my tenure will start from 1st of April 2025. Then the next PAP, which will be in 2026, that will be in my hand. So the initiatives will to be on that. This time of PAF comes under the current ICC Council. We have reached the maximum rebuttals for this question. Please move on. So Aditya, my question is on your called Freelancing Connect. So many students have, external freelancing portals already exist like Fiverr, Upwork and like that. So what advantage does your system offer, and how will you ensure reliable clients so that students don't get unpaid or exploited? So coming to the first part, what are we doing here as ICC? So मैंने देखा है कि हमारे पास कल्चरल क्लब में टैलेंट काफ़ी है, विच इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स जो हम प्रेजेंट करते हैं, और ये आउटपुट, ये हॉबीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, सिंस आपने बताया कि देयर आर डिफरेंट फ्रीलांसिंग पोर्टल्स. मैंने एक सर्वे निकाला था विच गिव मी द एग्जैक्ट डेटा कि आउट ऑफ ऑल द पीपल जो भी ICC नॉन ICC है, उसमें से 31.8% स्टिल आज भी अपने हॉबीज़ को एज अ फ्रीलांसिंग परस्यू करना चाहते हैं. बट बाय द ब्रूटल फोर्स उनको डिफरेंट पेज या फिर डिफरेंट साइट से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है, विच इज़ अ वेरी हार्ड प्रोसेस, जिसमें मेजरली बैंडविड्थ और टाइम दोनों वेस्ट होता है. इसकी जगह पर व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि मैं एक ब्रिज बनाऊंगा. सिंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज हमारे कैंपस में डिफरेंट क्लब्स में टैलेंट काफ़ी अच्छा है, एंड बाहर में जब भी आलम्स और कंपनीज आती है देर इज़ अ डिमांड. सो देर इज़ अ क्लियर फ्लो बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, बट कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे. दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू दिस फ्रीलांसिंग कनेक्ट, जिसमें हम यहाँ के बच्चों को लेकर आएंगे, एंड देन द पीपल, देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल दैट डिमांड दिस. द पीपल इन द इंस्टीट्यूट हु वांट टू डिमांड दिस फ्रीलांसर्स, द कंपनीज जिनको UI UX या फिर अलग अलग कंटेंट राइटर्स चाहिए, या फिर द एलम्स हु आर स्टिल परस्यूइंग दिस हॉबीज एंड दे नीड दिस पीपल. सो ये लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं. Have you talked with any alums or any company, any firm that they are needing this type of talent? Definitely. Now, how much name can I take companies and alums के? You can't take specific names, you can mention the number. Okay, so I've talked with 3 different companies जहाँ हमारे 3 अलग अलग alums हैं, एंड वो अलग अलग जॉनराज में थे. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से एक एलम से मिला था जिन्होंने मुझे कनेक्ट करके दिया था एक कंपनी से टू डू द फ्रीलांसिंग देयर, एंड फ्रॉम विच आई डिड द कंटेंट क्रिएशन का फ्रीलांसिंग. कमिंग विद दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, एंड बहुत सारा हार्ड वे आपको जाना पड़ता है ये सब कनेक्ट करने के लिए. दैट्स वाई द क्लियर कनेक्ट इज नीडेड.
Yeah, so you have mentioned you have 3 companies or 3 firms at now. So how will you ensure overall opportunities for the over the years? Definitely, we can start from getting into the circuit. अभी we are clearly disconnected from outside the market जो भी demand का है. The people जो कि यहाँ के हैं, they try to search for the photographers, the content writers, the music producers जो भी institute के हैं. But since we will connect to those people more, they can more spread the words, and again we will start with the alums जो कि हमको ज़्यादा connect करके देंगे. Then we can start with different companies or different people जो that can give us more opportunities. Fine. So last question. So tell me what is the timeline for this? When will the portal will be live and that thing? ओके सो ये प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ टेन्योर से कि देयर वाज प्लान्स ऑफ फ्रीलांसिंग पोर्टल्स बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे बिकॉज दैट वाज मोर फोकस्ड कि हम पोर्टल कैसे बिल्ड करेंगे और हम उस पर ये सब पोर्टफोलियोज कैसे डालेंगे, जबकि हमारा रूट कॉज है कि हमको कनेक्ट करना है विच कैन बी सॉल्व बाय द एक्सटर्नल पोर्टल्स ऑल्सो. सो आई हैव टॉक्ड विद पोर्टल कम्युनिटी जो कि एक्सटर्नली मतलब ब्रिज करती है इन द टेक साइड, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड to open up in the cultural side also, जिसमें the companies, the people just upload the projects and the submission link कि उनको किस तरह के projects और ये सब चाहिए, and then the people in the institute as we publicize it हमारे clubs में, हमारे genres में जहाँ भी need है वहाँ पर हम publicize करें, they can just put up their portfolios or their submissions in that and they can connect directly to the companies. So the next question is about the cultural certification system. So there have been many portals like we have DigiLocker and all that. So what measures are you taking in making sure that the certificates that people show from that portal, they are verified? check yeah. So about the portals, what I have planned is, since हमारे पास अलग अलग जॉनरास में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हमारा मतलब सर्टिफिकेट बहुत डिले से पहुंचता है, दैट्स वाई मैंने ये प्लान चालू किया था जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम है. इसमें द क्लब सेकीज मेक अ डेटाबेस ऑफ द पीपल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एंड दे जस्ट अपलोड इट. आफ्टर दैट द पार्टिसिपेंट गोज टू द पोर्टल, वो अपना डिटेल्स डालता है, उसके बाद देर इज़ अ गिवन टेम्पलेट जो हम डिज़ाइन करके देते हैं एंड द टेम्पलेट गेट्स ऑटोमेटिकली फिल्ड बाय द डिटेल्स जो पार्टिसिपेंट ने भरी है एंड द पार्टिसिपेंट्स गेट मैच्ड बाय द लिस्ट जो कि सेकीज ने दी है. सो अगेन उसका जो भी डिटेल्स है वो टेम्पलेट में चला जाता है. दिस होल सिस्टम इज़ देयर इन द टेक क्लब्स जो कि आईडीमो में है. दैट्स वाई मैं इसको इसमें भी लाना चाहता था एंड अगेन द टेम्पलेट इज़ वेरीफाइड कि ये अगेन कल्चर्स का ही है. Like, is there any way which the recruiters or maybe people who really wanted to be tested, so any kind of verification mail or how they gonna, you can simply put any kind of signature or fabricate the certificates, right? So how are you gonna make sure that these can be verified by you afterwards? अच्छा, सो द पार्टिसिपेंट्स अपना अपना जो भी डिटेल्स भरते हैं उसके बाद इट गोज़ टू द सेकी का पोर्टल कि जिसमें दे गेट ऑल द पार्टिसिपेंट के लिए इट्स सेम एज द रेज्यूमे में जैसा होता है कि आप जब रेज्यूमे वेरीफाई करने जाते हो तो जो रेज्यूमे वेरीफायर रहता है उसके पास एक टिक या क्रॉस का ऑप्शन आता है कि ये एक्चुअल में सही बंदा है कि नहीं. आफ्टर ही चेक्स द डेटाबेस कि या ही एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, ही गेट्स वेरीफाइड एंड देन उसका नाम ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट में जाता है. So that can be done in the current tenure, but what about people, like there are many PhDs who come up with like requests from past years and the present secretary or norm that doesn't know that this person had actually participated or not. So how are you gonna do that? Are you just taking care of the current tenure certifications or the past certification as well, or maybe in the future people from your tenure who participated, how will they be able to verify that? ओके, सो एक सेक्रेटरी के अंडर वो वाले पार्टिसिपेंट्स आते हैं
जिसके इवेंट्स थे और उस सेक्रेटरी ने वो इवेंट्स कराए थे. अगेन अगर उसने सेक्रेटरी ने लास्ट टाइम के इवेंट्स के सर्टिफिकेट्स देने, तो दे हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम द लास्ट ईयर. अब इट्स नॉट मतलब इफ इलेक्टेड मेरे टेन्योर में इट्स नॉट इन माई हैंड कि लास्ट ईयर के डेटाबेस में अपडेट था ही नहीं था, बट आई मेक श्योर कि इफ इलेक्टेड मेरे साल में तो ऑल द डेटाबेस आर अपडेटेड और वो चेक हो, ताकि नेक्स्ट ईयर में अगर ये फॉलोअप हो तो पिछले वाले भी स्मूथली ट्रांसफर हो पाए. So in this point, you mentioned that you'd require the participants to fill certain details for the certificate to get generated. So how do you ensure that all your participants are filling, or like, will you keep a deadline for it? What if, let's say, a participant fills it after the tenure is over? So like, why is it relying on the fact for the participants to fill the details again? So you are saying कि participants अगर बाद में भरते हैं तो फिर sorry, your question is exactly that, right? No, so just clarifying, you roll out registration forms for a lot of events. Why not use those details? Why do you need participants to fill your details again? Again, I don't need कि जो एक certain person है वो random लोगों के सर्टिफिकेट्स या फिर बाकी लोगों के सर्टिफिकेट्स अपने इसमें डाउनलोड कर दे. पार्टिसिपेंट जिन्होंने फॉर्म भरा है, पार्टिसिपेंट्स दैट नीड दैट सर्टिफिकेट विल गो टू द पोर्टल एंड जस्ट फिल अप द फॉर्म जो भी उनकी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, एंड दे विल गेट द सर्टिफिकेट. And like, just clarifying my previous question, there was, will there be some deadlines to fill these forms, or will they be available indefinitely? They'll be again वो सारा डेटा शीट जब तक उस पोर्टल में है तब तक वो वहाँ पर जाके ले सकता है एंड अपना सर्टिफिकेट उठा सकता है. अगेन ये दिक्कत आती है जब आप बाहर कॉलेज के जाते हो या फिर बाहर कहीं वर्क करते हो, आपको ये वो सर्टिफिकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं. सो आप अगेन गुम जाते हैं तो फिर आपके पोर्टल में वो सेफ है और वहाँ से ले सकते हो. So that means you are going to create a database of all the certificates as well? Like it would require cloud space and like, have you figured out all the logistics involved? The database requires only the list of the participants. And again जैसा कि मैंने बताया, अगर वो डिटेल्स भरते हैं and it gets matched with the list तो फिर वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा. अगेन यू डोंट हैव टू डाउनलोड ऑल द टेम्पलेट्स हर बार. देयर इज़ वन टेम्पलेट जिसको आप अपडेट कर सकते हो एंड द लिस्ट से मैच कर सकते हो. द लिस्ट गेट्स अपडेटेड एवरी ईयर और उसमें ऐड होना चाहिए. We just have some more time left for one last question for the panel. So I have a question on NCC mentorship. So assigning mentor is easy, but ensuring that genuine guide student is harder. So like, how will you enforce accountability so that mentors actively contribute instead of disappearing after initial guidance? राइट. सो दिस वॉज अ प्लान जो मैंने सी के लोगों से बात की थी, एंड इट वॉज अ प्रॉब्लम कि एनसीसी में जो भी कल्ट जनरल चैम्पियनशिप्स होती है वो सारे फ्रेशमेंस करते हैं. सिंस दे आर अ मोर डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म, तो दे डोंट गो थ्रू मोर कल्चरल एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर. दे फेस लिटिल डिफिकल्टी बिकॉज अगेन दे आर अ फ्रेशमैन, सो दे कांट परफॉर्म द हाई क्वालिटी थिंग्स इन GC. एंड the people in the NCC still ask informally the ICC people to come up to the event and judge or at least mentor. So again मैंने ये पूरा प्रोग्राम इसलिए निकाला ताकि सारे जॉनर्स, उनके सारे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि डांस, ड्रामा, स्टैंड अप म्यूजिक, पोइट्री, आर्ट्स हो गया, उन सब के साथ फेयर हो सके. एंड विल गिव देम ईच ऑफ देम द मेंटर्स. अगेन आई हैव थॉट कि ये मेंटर्स रहेंगे द क्लब कन्वीनर्स, एंड इसका पर्पस ये है कि क्लब कन्वीनर्स जब इन लोगों को सिखाएंगे एंड इन लोगों को मेंटर करेंगे, दे विल गेट द क्वालिटी स्टेज इन द एनसीसी का कल्ट GC, प्लस दीज फ्रेशर्स विल बी कनेक्टेड एंड विल कम अप टू द क्लब. सो यहाँ पर कन्वीनर्स की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि दे विल कनेक्ट द मोर फ्रेशमेन टू द क्लब. What measures you will take against these mentors who sign up and don't provide useful feedback or mentorship? Yeah, right. So about the measures, कन्वीनर्स के ऊपर देर आर हायरार्की में सेक्रेटरीज. आई विल इंश्योर कि ये सेक्रेटरीज गिवन कन्वीनर्स को भेजें, एंड अगेन दे वोंट पार्शियलेट बिटवीन, क्योंकि कंपनी वाइज है, देर आर 3 कंपनीज इन द NCC GC, तो वो उन तीनों का साथ में लेके वर्कशॉप करें एंड दे लेट, मतलब वो बताए उनके जॉनर्स के बारे में. अगेन इनके साथ द कंपनी हेड्स रहते हैं.
So by the informal means you can always ask the company heads कि the person या फिर वो जो भी थे उन्होंने सही मतलब आए हैं बताया है एंड चीज़ें करी है कि नहीं. Okay, so this concludes the manifesto debate section. Let's move on to the next section of the soapbox, which is topic debate. So here, Aditya, I have some chits. You will be asked to pick one chit, and you will be given 2 or 3 minutes to speak on the topic, and then the panel will cross question. So please come here and pick one chit. You can pick maximum 1 chit. Can you define the flow of time again? Yeah, so you are given 2 or 3 minutes to speak about the topic and put forward your view. Once you have spoken, the panelists will each speak for 1 minute each, and then you can debate on the topic. Okay. ठीक है. So for the context, I'll read out loud the topic. How would you handle the loss of participation in a particular genre due to being overshadowed by the other genre, or general loss of interest among the institute students? So I like to divide this question into 2 sections, which is first is how will you handle the loss of the participant in a particular genre due to being overshadowed by the other genres. यहाँ पर देयर आर जॉनरास जो कि काफ़ी क्लैशिंग होते हैं एंड जो कि टाइप ऑफ सेम वर्टिकल्स को केटर करते हैं, जिसकी वजह से आई अग्री कि क्लैशेस आ जाते हैं एंड कहीं ना कहीं कोई एक ओवरशैडो हो जाता है बिकॉज ऑफ द इवेंट्स, बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप्स और थिंग्स. इसके लिए यही इंश्योर करना बेस्ट है कि जब भी ऐसे क्लब्स जो कि कॉमन वर्टिकल्स को आ रहे हैं, दे हैव इनफ गैप्स इन देयर इवेंट्स. अगर कुछ टीयर 1 के इवेंट है या फिर आपस के टीयर 2 के इवेंट्स है, दे हैव इनफ गैप्स बिकॉज द सेम पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दोज वर्टिकल्स. तो फिर वो उनको इनफ बैंडविड्थ मिले, उनको इनफ स्पेस मिले ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह से लूज ना कर दे. अगेन आई बिलीव कि देयर आर स्पेसिफिक पीपल जो एक ही क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, बट अगेन देयर आर ऑल्सो पीपल जो ये ट्राई करते हैं कि वो जॉनर से ज़्यादा रिलेटेड रहे, वो आर्ट से ज़्यादा रिलेटेड रहे इन द क्लब. सो उनके लिए वी विल एंश्योर कि इन टाइप के क्लब्स में स्पेस रहे एंड इनफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन रहे. अबाउट द सेकेंड थिंग कि और जनरल लॉस ऑफ इंटरेस्ट अमंग द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स. अब इंस्टीट्यूट में जो लोग कल्चर से पार्टिसिपेट करते हैं वो मेजरली आप समझ लो 3 कैटेगरी के रहते हैं. पहले वो लोग जो क्लब से एंट्री रखते हैं, क्लब सेंटिमेंट्स पे आपकी क्लब एक्टिविटीज़ करते हैं. दूसरे होते हैं वो लोग हु आर हैविंग सम इंसेंटिव, जो क्लब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ आउटपुट लेना चाहते हैं. थर्ड आर हु आर जस्ट हियर फॉर फन, जो अपनी बस हॉबी परस्यू करना चाहते हैं, जो अपने बस फन को केटर करना चाहते हैं. यहाँ पर जनरल लॉस तब आता है जब आपके नीचे के जो 2 हैं, विच इज़ जो कुछ इंसेंटिव लेना चाहते हैं प्लस जो कुछ फन करना चाहते हैं, उन पे दिक्कत आती है एंड दे लूज द इंटरेस्ट. इनके लिए वी कैन इंश्योर इज फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पर उनका इंटरेस्ट लूज होता है या फिर जहाँ पर उनका इंसेंटिव कम हो जाता है, वी कैन गिव देम मोर इंसेंटिव. जैसे कि मैंने अपने मैनिफेस्टो पॉइंट में लिखा था, इट वॉज द अवार्ड नाइट विच इज़ इन वर्टिकल्स को पर्टिकुलर क्लब अवार्ड्स देना, जहाँ पर वो अपने इन वर्टिकल्स में बेटर परफॉर्म कर सके और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके एंड दे गेट सम इंसेंटिव कि एट द एंड विल गेट सम आउटपुट. इवन द पॉइंट वेयर वॉज द फ्रीलांसिंग पोर्टल, अगर आप अपने टैलेंट को और पार्टिसिपेट मतलब आप और पार्टिसिपेट करते हो, आप उसमें और अच्छा करते हो, सो यू विल एनहांस योर हॉबीज़ एंड एट द एंड यू विल गेट सम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज, एट द एंड यू विल गेट समथिंग आउटपुट आउट ऑफ योर हॉबी. जो थर्ड पार्ट है विच इज़ हु आर हियर जस्ट फॉर फन, अगेन when there are too much events in the very less time, वहाँ पर people might saturate and they won't मतलब again the quality of the stage becomes less, the quality of the events become less. तो Okay, Aditya, please conclude. That is been your time. Yeah, so third लोगों के लिए we can ensure is जैसा मैंने first time बताया था कि we will put enough gaps between the verticals जो same club में आते हैं. Okay, so panelists, would you like to put forward your viewpoint on the topic? ओके, तो मैं अभी एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे हेलो, हाँ, तो
अभी हमारे पास दो टाइप के क्लब है आईसीसी में, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड जो नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इनसिंक है, तो इनसिंक का अभी फ्लैगशिप इवेंट है एड्स, जो अभी यूजुअली जनवरी एंड फर्स्ट वीक में रहता है। अभी पैरेलली जो फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब है वो नॉन परफॉर्मिंग है, एंड कलादर्शन जो फ्लैगशिप इवेंट है क्लब का, उसका थीम रिलीज रहता है यूजुअली अराउंड सेम टाइम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे जो फाइन आर्ट्स में जो ऑडियंस आ रही है उनको यहाँ पर भी रहना पड़ता है, बट उनके पास एक कंपल्सन भी है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें परफॉर्म करना है ऑब्वियसली एड्स में, तो इट्स कंपल्सरी फॉर देम कि वहाँ पे उनको जाना ही है। बट जैसे फाइन आर्ट्स में इट्स वॉलेंटरी कि वो आ सकते नहीं आ सकते, जब आना है तब है। तो ऐसे केसेस में जैसे तुमने एक बोला कि तुम गैप्स रखोगे, स्पेसेस रखोगे, बट लाइक यूजुअली जो रहता है, जो काम होता है, कला दर्शन का भी काम नाइट टाइम में होता है, लाइक आफ्टर 7 PM, एंड इनसिंक की प्रैक्टिसेस भी 7 PM के बाद ही रहते हैं। तो लाइक ऐसे केसेस में तुम कैसे इंश्योर करोगे कि क्लैशेस नहीं हो रहे? ठीक है, आई एग्री टू द पॉइंट कि देयर आर कमिटमेंट्स जो सेम क्लब सेम जॉनरा के हो जाते हैं, एंड भले ही वो फिर 2 वीक से गैप में हो, वहाँ पर क्लैशेस इन द पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं कि कुछ लोग सेम जगह पर जाना चाहते हैं बट नहीं जा पाते, एंड दे चूज़ वन बिकॉज वहाँ पर उनको इंसेंटिव ज़्यादा दिखता है। जैसे आपने बताया कि वो एड्स में जाना चाहते हैं बिकॉज उनको परफॉर्मेंस मिल रहा है, वहाँ पर उनको स्टेज मिल रहा है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने भी फील किया था कि नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ इतना जस्टिस नहीं हो पाता है, बिकॉज इतना इंसेंटिव लोगों को नहीं मिल पाता है, बिकॉज इट्स जस्ट वॉलंटियर कर रहे हैं और वो कुछ बना रहे हैं, वहाँ से उनको कुछ इतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आई विल ट्राई टू पुश इन माई टेन्योर कि उनको जो भी नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनसे भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिले, सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सो द पीपल हैव मोर थिंग्स टू टेक एज अ आउटपुट फ्रॉम दिस क्लब। एंड जबकि आपको इनसिंक में अगर आपको स्टेज मिल रहा है तो आपको नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी कुछ ऐसे इंसेंटिव मिले, तो देयर आर पीपल जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एंड फिर एड्स में दीज आर पीपल, एंड कला दर्शन में द डिफरेंट पीपल। कुछ लोग स्टिल कॉमन रहते हैं टू विच इट्स अप टू देयर अगेन टाइम कमिटमेंट, बट अगेन इस बार भी एड्स जो है फेब के मिड में हो रहा है, एंड मार्च के मिड में कला दर्शन हो रहा है द फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक में। सो वहाँ पर अगेन स्टूडेंट्स का ये भी थॉट रहता है कि विल डू फर्स्ट द एड्स एंड देन वो सब फिर KD एंड उन सब इंस्टॉलेशन हो जाए। Yeah, you can ask 2 more questions. हाँ, कला दर्शन का फाइनल एग्जीबिशन 15-16 मार्च को है, बट जो काम चालू हो रहा है वो तो जैन के स्टार्ट से ही चालू हो गया अभी। लाइक सो कला दर्शन इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट, नॉट अ सिंगल इवेंट जो मार्च मिड में होगा। तो अभी जो थीम रिलीज इंस्टॉलेशन होगा वो एक कला दर्शन का इवेंट, तो अभी वो चालू हो गया। एंड यूजुअली जो थीम रिलीज होता है वो जो फ्लैगशिप इवेंट्स हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के उधर ही होता है। तो लाइक ऐसे केसेस में बात कर रहा हूँ। राइट, सो ऐसे केसेस में अगेन 2 टाइप के ओवरशैडो हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द पब्लिक टाइप का ओवरशैडो, जिसमें एड्स के परफॉर्मेंस और इन सब में आपका जो क्लब इवेंट या वो है इट गेट्स क्लैश्ड और वहाँ के ऑडियंस या फिर वहाँ के मेंबर्स चले जाते हैं। सेकेंड इज़ आपके जो लोग हैं उनमें क्लैश आ जाए कि जो एग्जैक्ट कला दर्शन के सम 40 to 50% लोग हैं वो लोग एड्स भी करना चाहते हैं। सो वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट नंबर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर द पब्लिसिटी केसेस आई एग्री, वहाँ पर हमने एज अ इन माई टेन्योर वी डिस्कस दैट जो भी वर्कशॉप्स और जो भी इवेंट्स होते हैं देयर शुड बी अ गैप ऑफ पब्लिसिटी कि जिसमें हम फ्लेक्सिस बैनर्स और ये सब कर पाए ताकि उनको भी इनफ स्पॉटलाइट मिले एंड उनमें भी लोग आ पाए। एंड अगेन देयर इज़ वन ओपिनियन कि जो लोग KD में आते हैं वही पर्टिकुलर लोग आर्ट फॉर्म्स और ये सब के करते हैं, और जो लोग एड्स में आते हैं वही पर्टिकुलर लोग जो डांस और इस सबको हॉबीज़ को परस्यू करना चाहते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल वेन डायग्राम पोर्शन जो दोनों साइड आ जाता है और जो इवेंट टाइम पे क्लैश कर जाता है। So I have another question for you. So across all the genres that come under culturals, as Ashish specified, performing, non-performing. So performing arts naturally get more visibility because of having the stage presence and stage time. And even in a lot of the major events, specifically say PAF, majority of the performing arts get a standpoint, whereas the non-performing arts are not that well represented. So again, how do you plan to combat this difference in visibility? अग्रीड, एंड इस पे तो आई बिलीव कि कल्चरल्स इज़ द प्लेस जहाँ पर जितने भी क्लब्स हैं सब अपने अपने यूनिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं
और कोई भी एक यूनिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाता। अगर आप परफॉर्मिंग में भी ले लें तो शायद एक क्लब दूसरे क्लब का बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर में चलता है, जिसमें अगेन लोग ऊपर नीचे होते ही हैं। अगर स्पेसिफिक टू बस रहे कि स्टेज देने के लिए वी आर हैविंग परफॉर्मिंग्स एंड स्टेज ना देने के लिए वी आर हैविंग नॉन परफॉर्मिंग, इसके लिए मैंने सोचा था कि जो भी अवार्ड नाइट रहेगी, अवार्ड नाइट में जो भी ROH स्पेशल मेंशन और ये जो सारे अवार्ड्स रहते हैं, जो भी अप्रॉक्स 8 to 9 अवार्ड्स रहते हैं, जो अप्रॉक्स 8 to 9 जॉनर्स कैटर कर लेते हैं, स्टिल देयर आर सम पर्सन्स, सम वर्टिकल्स जो कुछ बैक एंड्स पे रहते हैं, जो कुछ सपोर्टिंग के रहते हैं, जिनको नहीं मिल पाता है, विच आर मेजरली द नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स। बिकॉज ये सारे अवार्ड नाइट मतलब उन अगस्त टाइम में जो अवार्ड्स होते हैं वो सारे परफॉर्मिंग में जाते हैं। इसलिए मैंने ये रखे थे ताकि दे गेट अ स्टेज, ताकि दे गेट अ अवार्ड ऑफ वॉट एवर दे हैव डन एज अ इनपुट इन देयर जॉनरा, इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, इवन वो परफॉर्मिंग हो या फिर नॉन परफॉर्मिंग हो, इवन उनको स्टेज मिला हो या फिर उनको स्टेज नहीं मिला हो, इवन उन्होंने कहीं पर एक शोकेस किया हो या फिर कहीं पर एक इंस्टॉलेशन लगाया हो। So your award night is already, as you mentioned, it's given recognition to people who already done a lot of achievements or done good in those genres. I'm asking about the new people or the people in our institute that you aim to, receive participation from. तो वो incentivize कैसे हो रहा है? Because there's a difference in the genres as we discussed. देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। पहले तो वो लोग जो हॉबीज सीख के आते हैं एंड वो यहाँ पर क्लब चूज करते हैं कि अब हम यहाँ से अपनी हॉबीज परस्यू करेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी इन हॉबीज के बारे में सुना नहीं होता है, बट दे हैव विलिंगनेस टू लर्न इन दिस टाइप ऑफ हॉबीज। सो अगर हम परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग बात करें, सो मेजरली लोग अपने स्कूल्स या फिर इन सब से परफॉर्मिंग सीख कर आते हैं, बट अगेन ये भी जस्टिस नहीं है कि सारे परफॉर्मिंग सीख कर आते हैं। कुछ मेजर परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स हैं जो ये लोग अपने स्कूल टाइम पे करते आ रहे हैं एंड देन दे कंटिन्यू हियर। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी कुछ जगह पर है जहाँ पर दे आर ट्राइंग देयर फर्स्ट टाइम कि ये हॉबीज़ कैसे परस्यू करते हैं। सेम एज नॉन परफॉर्मिंग, कुछ लोग अपने घर से अपने स्कूल टाइम से जॉनरा सीख के आते हैं और यहाँ पर कुछ नई एक्टिविटीज़ करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर व्हेन दे गेट द अपॉर्चुनिटी कि यू विल लर्न दीज टाइप ऑफ थिंग्स, प्लस उसके ऊपर यू हैव सम इंसेंटिव कि आप यहाँ से इन हॉबीज़ को बाहर लेके जा सकते हो, कहीं फ्रीलांस कर सकते हो। अगर आप बात करो फोटोग्राफी क्लब की जो कि नॉन परफॉर्मिंग है, स्टिल इफ इट गेट्स इनफ रिकमेंडेशन लाइक रिकग्निशन कि यहाँ से आप टैलेंट सीख के कहीं पर अपना वर्क आउटपुट डाल सकते हो, कहीं से इनपुट कलेक्ट कर सकते हो, कहीं से मनी बना सकते हो। तो फिर इट बिकम्स अ गुड इनफ इंसेंटिव कि लोग ये सीखें और फिर अपनी हॉबीज़ को आगे परस्यू करें। Okay, we can conclude the topic debate section here. Thank you, panel. Let's move on to the next section of the soapbox, background check. So, Aditya, I just have one question for you. You were the contingent leader in Malhar and you've mentioned that you got some medals, yet there was a major issue with logistics handling of the team. Can you please explain why there was poor participation and organization issues from your side? ठीक है, सो आई जस्ट गो थ्रू द फ्लो ऑफ द मल्हार। सो वी हैव सम कंटीजेंट्स, सम जॉनरा जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगेन इट इज़ डेफिनेटली वी वर गोइंग एट द एम ऑफ द इंटरैक्टिव प्रैक्टिस इन विच वी विल पार्टिसिपेट हाउ एवर द इंटरैक्टिव फ्लोज। इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रोव कॉमेडी, how the improv comedy is done in Intrite is we get a prompt on the spot where it's some word or some suggestions जिस पे हम act करते हैं और वो सब करते हैं। But in Malhar they had some mixture of combos of genre जिसमें उन्होंने different type of चीज़ें ही डिमांड कर ली थी, which was not something जो हम प्रेप कर रहे थे। Again improv comedy में they said it will be a mockumentary which will be प्री स्क्रिप्टेड, जिसका हमको स्क्रिप्ट उसके पहले देना पड़ेगा एंड उसके हमको रोल्स और कॉस्ट्यूम ये सब डिसाइड करके आने पड़ेंगे और कैरेक्टर बना के आना पड़ेगा, विच इज़ नॉट समथिंग वी डू। सो ये हमारे थोड़े से जॉनर्स के बाहर हो गया था। अगेन देयर वर सम थिंग्स जो करते आ रहे और वो कर रहे थे, विच वॉज वन थिंग वॉज मंडाला पेंटिंग। इट वॉज अ स्मूथ इवेंट जिसमें हम यहाँ से 2 लोग को लेकर गए थे एंड दे परफॉर्म वेरी वेल एंड दे वन द सिल्वर मेडल। वहाँ पे लॉजिस्टिक इशूज़ नहीं आई थी। अगेन मेजर लॉजिस्टिक इशूज़ इन्हीं जॉनर्स में आया था। द अनदर वॉज द बीट बॉक्सिंग, वहाँ पे हमको ज़्यादा इक्विपमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मल्हार वॉज समथिंग जहाँ पर इट वॉज टू मच क्राउडेड एंड टू मच chaotic एट दैट मोमेंट ऑफ प्लेस, जहाँ पर चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही थी। एंड हम जब इंस्टीट्यूट में प्रेप कर रहे थे तब भी देर वर सम डिफरेंट डिमांड्स ऑफ द टीम जो कि हमारे सेल्फ जॉनरा में नहीं आता है, तो इट वॉज समथिंग आउट ऑफ आवर हैंड।
Okay, thank you. Let's move on to the next section, the Q&A session. I would like to invite the Insight team for their questions. Right, so the first question is about IITB Creatives, which was launching a moderated Instagram page for students and clubs to showcase skills and creative works. So how will you moderate the content exactly, and how is it different from current student submissions for events and clubs publishing it on their own Instagram pages? Okay, so given the context of IITB Creatives, the major problem जो मैंने अपने ग्राउंड वर्क और इन्फॉर्मेशन से निकाली विच वॉज कि जो भी हम टैलेंट और ये सब सीखते हैं हम वो सब एक आउटपुट की तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, भले ही वो फिर परफॉर्मिंग या फिर नॉन परफॉर्मिंग हो. मेजरली हम अगेन ये सब इवेंट्स के शोकेस के वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बट अगेन समथिंग वी हैव लर्न बाय इन दीज क्लब्स, जो कि कुछ डांस हो गया या फिर कुछ सोलो कंपोजिशंस हो गया जो कि लोग अपने पेजेस पे डालते हैं. मैं उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, इज IITB Creatives. द फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ विल दिस बी मॉडरेटेड. सो बेसिकली इंस्टाग्राम पेज पे देयर विल बी अ सबमिशन लिंक इन द बायो, जिसमें लोग जाएंगे एंड दे विल सबमिट देयर वीडियोस, देयर सेल्फ मेड वीडियोस, जो भी उन्हें बनाई है, जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनका आउटफॉर्म है, जो भी कर रहे हैं. उसके बाद इट विल गो टू द मल्टीमीडिया टीम, जो भी हमारे पब्लिसिटी नॉर्म रहते हैं, विच विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पर्टिकुलर सेक्रेटरीज जिनके अंडर वो आता है. नाउ फॉर द इंश्योरिंग द क्वालिटी, यहाँ पर आई विल मेक श्योर कि सारे सेक्रेटरीज के पास वो पर्टिकुलर गाइडलाइन हो, विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी रिलीजन या फिर कुछ भी ऑफेंड नहीं हो रहा है, एंड वो सारे एथिकली सही है, एंड इट अगेन इंश्योर द क्वालिटी. दैट्स हाउ the secretary will upload it on the ICC page कि yeah it's all good and we'll upload it on the Instagram page. यहाँ से we'll moderate it. What is the second question? How is it different from clubs publishing it on their own Instagram pages right now? So club जब अपने Instagram page पे publish करते हैं, they get to see the, अभी आप जब अपने हमारे clubs के pages देखोगे, you will get to see हमारे जो publicities हैं, हमारे जो posters हैं और हमारे जो events में परफॉर्म करने के बाद जो हमारे रील्स बनते हैं वो सब आते हैं. हियर IITB Creatives विल बिकम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना सोलो कंपोजिशन जो भी आर्ट फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हो. ये ना ही सिर्फ IIT बॉम्बे के लोगों को मोटिवेट करेगा, IIT बॉम्बे के बाहर के लोगों को भी दिखेगा कि IIT बॉम्बे में दिस टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म्स होते हैं, ये ऐसे टाइप के डांस होते हैं, ये अच्छे अच्छे म्यूजिक सोलो कंपोजिशंस करते हैं एंड ये अच्छे अच्छे आर्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं. सो क्लब स्पेसिफिक डालने पे ये हमारे डिफरेंट जॉनर में स्प्लिट हो जाएगा और हमको एक जगह पर नहीं मिल पाएगा. These gather up all the talent we have in the IIT Bombay. So will you do it on the culturals page or will you make a new page for this? Definitely new. Cultures page is definitely for the Cultures page is definitely for the publicity जो इंस्टीट्यूट के लोगों के लिए. वहाँ पर अगर हम ये सारे आर्ट फॉर्म्स लगातार डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पैम पोस्टिंग हो जाएगा. That's why a different page to showcase the whole creativity we have in IIT Bombay. So the next question we have is on the inventory tracking system, which was to implement digital inventory management. So how will it be monitored, as many equipment are with Fleckies and it's all shared informally? So I'll tell the context कि अभी इन्वेंट्री कैसे हैंडल होती है. All the inventories are gone to the SAC, जहाँ SAC has the ownership of all.
SAG हैज़ दी ओनरशिप ऑफ ऑल द इन्वेंट्रीज. वो इन्वेंट्रीज फिर SAG अपने पर्टिकुलर क्लब सेक्रेटरीज को दे देता है कि नाउ यू हैव द ओनरशिप. अब वहाँ पर क्लब सेक्रेटरीज की जिम्मेदारी रहती है. अगेन बाकी जगह पर ऐसा होता है कि यू टेक डायरेक्टली फ्रॉम द SAG और आप SAG रजिस्टर में दे देते हो. बट यहाँ पर जब आपका फिल्म का सारा इक्विपमेंट्स फिल्म मीडिया सेक्रेटरी के पास जाता है, म्यूजिक का सारा इक्विपमेंट्स म्यूजिक सेक्रेटरी के पास जाता है. सो नाउ द सेक्रेटरीज हैव द ओनरशिप कि वो अपनी इन्वेंट्रीज कैसे मैनेज करेंगे और कैसे डेलीगेट करेंगे. उसके ऊपर नाउ अगेन वहाँ पर कहीं दिक्कत आ जाती है कि हम सही से ट्रैक नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं इनफॉर्मली इन्वेंट्री कहीं तो लॉस्ट हो जाती है. वी डोंट हैव प्रॉपर हिस्ट्री की किस किस के पास इन्वेंट्री थी, अभी इन्वेंट्री इक्विप्ड है नहीं है, अभी इन्वेंट्री कौन से कन्वीनर के पास है, वो सबका ट्रैक रखने के लिए इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम निकाला है. You still haven't answered exactly how it will be monitored, since right now what we have is an informal understanding. So how will you go around it to set up a new system? So as I had a talk with the web nominee, he told me the portal is possible, but we have to, there is a long process. I had a talk with the DevCom team. They are building a portal, but right now I can't just rely on that. So I'll make sure कि there is a proper sheet of which जहाँ पर जो भी क्लब के equipments हैं, उसके बाद क्लब के जो भी equipments के description है, and the equipments is equipped or not, और फिर वो कौन से convener के पास है, कब कब लिए गए थे एंड किस किस को दिए गए थे, वो सब उसमें ट्रैक हो. उसके बाद अगर SAG जो है, अगर आप उसके पास नई इन्वेंट्री मांगने जाते हो तो SAG चेक्स कि आपने पुरानी एंट्री कहाँ खोली. वहाँ पर हमारा जो इन्फॉर्मल सिस्टम रहता है वो सेक्रेटरी पे ब्लेम आ जाता है, सेक्रेटरी पे, कि देर इज सम बैलेंस, तो सेक्रेटरी पे फंड्स कटता है. जबकि नाउ वी हैव प्रूफ कि इस पर्सन ने इन्वेंट्री इस टाइम पे ली थी एंड ये इन्वेंट्री वापस नहीं हुई है. सो नाउ वी हैव अ प्रॉपर ट्रैक कि दिस इज वेयर द इन्वेंट्री इज लॉस्ट एंड वी कैन कलेक्ट या फिर वी कैन टेक फंड्स फ्रॉम द पर्सन. Okay, so a follow up on this, what is the expected timeline for the implementation of all this? द पोर्टल विल बी स्टार्टेड, मतलब पोर्टल तो बात की बात है, द शीट तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी टाइम. फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई टेन्योर आई विल मेक श्योर कि पूरी शीट अच्छे से मेंटेन हो. Okay, and in case of damage of the equipment, who will be held accountable? द वन पर्सन जिसके पास उस टाइम पे इक्विपमेंट थी, इफ द इक्विपमेंट इज नॉट इक्विप्ड, मतलब द ओनरशिप इज टू द सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी पे आएगा. और अगर वो किसी पर्सन पे इक्विप्ड थी तो वो उस पर्सन पे आएगा. So essentially the gist of this manifesto point is that you're making an Excel sheet, right? वेल आई हैड अ टॉक जिसमें मैंने डेवकॉम इन सबसे बात की. देयर इज अ प्रॉपर ऐप ऑल्सो, आई जस्ट सर्च द ऐप, gives all the data and the history. Again, building a portal is something जो कि हर बार पुश होता है एंड हर बार जस्ट फॉर द पोर्टल हम कहीं ना कहीं डिले कर जाते हैं एंड हमारा पूरा इन्वेंट्री लॉस हो जाता है. इसकी वजह से देयर इज सम इम्बैलेंसेस. सो अगेन बाय द साइडलाइन वी विल हैव अ पोर्टल बिल्डिंग एंड फॉर दैट टाइम आई एम इनफॉर्मली डूइंग द शीट. Alright, okay, so question about your another manifesto point. This is about PAF Rachna, where you said you'll launch production design and safety workshops teaching structural engineering and machinery handling for better PAF production. But as per our information, there have been no major accidents or mishaps associated with PAF prod. So why do you think teaching structural engineering is essential? Well, I am just stating the information I got from the groundwork. I did the groundwork from the PAF OC and PAF nominees, and he said कि every time and every PAF time there is major incidents and there is blood every time on the floor which gets cut through, जो कि prod team से निकलता है from the board, from the machineries or from that thing, and they recommended me कि please push for it that we get a proper carpenters who can teach us how to handle these inventories, how to handle these equipments to woods and scaffolding and make the truss. So you'll get external people to teach structural engineering, or you'll get carpenters from outside to teach, or would it be someone from ICC? Just to clarify. Definitely not. I had a talk with a professor of the civil engineering and he is very excited to teach the structural engineering. Now the PAF is something जहाँ पर सारे कल्चर साथ में आते हैं, बट हम यहाँ पर एक मेजर सेलिंग पॉइंट भूल जाते हैं कि PAF is something जिसमें हम एक प्रॉड को जीरो से
पूरे OET में भर के खड़ा करते हैं. इट्स अ वेरी ग्रांड प्रोजेक्ट जो सारे फ्रेशीज करते हैं. नाउ दिस इज समथिंग जो किसी प्रोफेशनल इन सबको सिखाने चाहिए. एंड अगर हम पैफ कर रहे हैं तो ये एक मेजर चीज़ है जो हम यहाँ सीख के जा रहे हैं. सो अगेन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज द थिंग जो हम अब सिखाएंगे. Will you be able to fit this in the current timeline, because most of the activity happens in the evening times mainly, and with students already having a crash schedule, especially the ICC calendar also being quite packed? डेफिनेटली. नाउ द पैफ हाउ इट वर्क्स इज पैफ की मीटिंग्स फरवरी में हो जाती है जिसमें हॉस्टल्स रहते हैं. एंड देन द वर्टिकल्स बढ़ जाते हैं. वर्टिकल्स के बाद उनके काम वहाँ से चालू हो जाते हैं. अबाउट द ICC पैक्ड थिंग, ICC का मार्च टाइम में देर आर सम फ्लैगशिप्स, बट सिंस ये सब पैफ की टीम्स वर्टिकल्स में बढ़ जाते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस और फिर वो उस पर अपना काम करना चालू कर देते हैं. सो जो सबका इट विल बी इन द स्टार्ट जब प्रॉड टीम्स डिसाइड हो चुकी है और प्रॉड टीम्स कर रही है. एट दैट टाइम इन द स्टार्ट उनको ये वर्कशॉप देना फिजिबल है बिकॉज देर आर गैप्स और दे आर डेडिकेटेड टू डू ऑल द प्रॉड्स. So the next question is regarding your cultural course hub of recording and YouTube videos for courses like DB 101. So the main USP of these sessions is that they are in person, they allow interaction. So what is the value of online sharing these sessions? When there's already lots of resources available on YouTube. डेफिनेटली. नाउ देयर आर थिंग्स जो आप वीडियो लेक्चर्स इन सब में नहीं कर पाते हो जितना आप ऑन एंड ऑन इन द सेशंस कर पाते हो. बट अगेन समवन हु हैज़ मिस सम सेशंस और फॉर समवन हु कुडंट अटेंड द सेशन और फॉर समवन जिसने ये सेशन कुछ 5 से 6 महीने पहले किए थे, नाउ ही वांट्स अ रिकैप. एंड अगेन टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ DB 101 इन इटसेल्फ, जनवरी टाइम में DB 102 होता है विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द DB 101 जिसमें जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो वापस इसमें आते हैं. दिस टाइम मैंने इंस्टीट्यूट बिगिनर सेक्रेटरी से बात की थी एंड शी सेड कि इट्स अ गुड आइडिया कि DB 101 के लेक्चर्स जो है आ जाए एंड देन पीपल कैन जस्ट रिकैप थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड गेट टू द DB 102. What do you feel about that this is going to affect the offline participation? And if you're sending content on YouTube, you will have to look into the content. So will you be censoring that also, and how are you monitoring the content? डेफिनेटली. अबाउट द अफेक्टिंग द एक्चुअल सेशंस, यहाँ पर जो भी IMLP और इन्वेंटरी हैंडलिंग सेशंस रहते हैं ये सेशंस आपको डायरेक्टली लॉजिस्टिक्स हैंडल करने को मिलते हैं और ये सब करने को मिलते हैं. जैसा आपने फर्स्ट वर्ड में बोला था कि ऑन एंड ऑन इंटरेक्शंस आर बेटर देन द यूट्यूब लेक्चर्स. सो इनकी क्वालिटीज़ कभी डिक्रीज नहीं होगी सिंस दे आर मोर फेस टू फेस इंटरेक्शंस. एंड अबाउट द सेंसरिंग पार्ट, अगेन द मल्टीमीडिया बॉडी इज रिकॉर्डिंग ऑल द लेक्चर्स जो भी सेशंस में होते हैं एंड ऑल द लेक्चर्स आर इंफॉर्मेशन बेस्ड. तो उसमें कोई भी मेजर सेंसर की जरूरत नहीं होगी. बट आई मेक श्योर कि कुछ भी डिफरेंट चीज़ ना हो, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड हो. Have you taken consent from the instructors and also for cases of plagiarism? हाँ डेफिनेटली. सो IMLP इज समथिंग जो क्लब के कन्वीनर्स कराते हैं एंड क्लब की एक्टिविटीज़ रहती है. तो वहाँ पर देर इज़ नो सच थिंग एज द इंस्ट्रक्टर एंड द कंसेंशुअल थिंग. सो एज द DB 101. So yeah, we have another question on art space, which is create a gallery wall at Old Sac. So will it be a permanent gallery wall? नहीं डेफिनेटली. सो देर आर डिफरेंट आर्ट्स गैलरीज जो अगेन सबमिट होती है एंड इफ आफ्टर अ होल मंथ वी कैन जस्ट चेंज इट टू द न्यू आर्ट फॉर्म्स जो भी हमको दिखानी है एंड वी कैन अपडेट इट एवरी मंथ. So I think it will overlap with KD and Fusion, and it might affect the participation in those specific events. So how would you overcome these problems? KD और विजन में जो भी इंस्टॉलेशन ये सब लगते हैं, यू गाइज टेक इट फ्रॉम द पीपल एंड देन इंस्टॉलेशन के बाद इधर वापस जाते हैं या फिर वो रह जाते हैं. अगेन पुटिंग इट इन अ आर्ट वॉल जो भी 4 से 5 आपके आर्ट गैलरीज पे जो भी फोटोज़ और पिक्सल्स के रहेंगे, इट विल बी थ्रू आउट द ईयर एंड विल अपडेट एवरी टाइम. सो द पीपल गेट अ रिकग्निशन कि देयर थिंग हैज़ गॉन इन द आर्ट वॉल. अगेन KD एंड विजन हैव वेरी डिफरेंट वैल्यूज बिकॉज वो पूरा फ्लैगशिप है, उसमें पूरा फुटफॉल आ रहा है और वो पूरा आर्ट फॉर्म्स देख रहे हैं. Who will be maintaining the wall, and there are multiple rounds of wall
renting an old track for the IPK fest and all. So the wall which I am talking about is the gym से लेकर the roots room. It was पहले वहाँ पर wall painting GCs हुआ करती थी. Now वहाँ पर wall painting GCs अब नहीं होती है, so it's a empty wall जहाँ पर हम ये सब portray कर सकते हैं. Again, we will be handling in morning. I talk with the Institute Photography and Finance Secretary and जो भी रंग के इंस्टॉलेशन रहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Insight team. So let's move on to the audience questions. I would just like to give the basic guidelines. We have maximum of 10 minutes for the audience questions only. So please make a line. Whoever want to ask a question from the audience, please make a line towards here. You will be given the mic to ask the question. You will have maximum of 2 minutes for each question. They can ask one follow-up. Does anyone want to ask question from the audience? We will wait for 1 minute. If no one comes, we can move on to the closing statement. I have a very simple question. What is the vision and mission for Inter-IT next? That is to happen next year. राइट सो सिंस हमने इस बार काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स लिए इंटर-IT फॉर द नेक्स्ट टाइम आई एम इंश्योरिंग कि जो भी पर्टिकुलर हमने इस बार फ्लॉज किए थे, जो भी पर्टिकुलर हमने कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स किए थे, वो सब इम्प्रूव हो. फ्रॉम द स्टार्ट्स आई हैव नोन कि वी आर एट द सेम प्लेस एंड बाकी इंटर-ITs कहीं ना कहीं फॉल डाउन हुई है. सो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा खासा गया है एंड आई नोट दैट एंड आई नोट जो भी फ्लॉज हमने किए हैं. जैसे कि इस बार परफॉर्मर्स को, इस बार जो भी कंटीजेंट मेंबर्स थे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई थी इन द फूड सिस्टम और डिफरेंट थिंग्स. सो अगेन मेरे पास उसके लिए मेसिंग और उन सब के प्लान्स मैं प्लान कर रहा हूँ जो कि परफॉर्मर्स के लिए बेटर करेगा, जो कि टाइमलाइन इंश्योर करने के लिए बेटर करेगा, उनकी हेल्थ के लिए बेटर करेगा एंड वी कैन कहीं ना कहीं एनहांस द क्वालिटी ऑफ आवर कंटीजेंट. A follow-up. Budgeting in Inter-ITs because we have a limited budget. So how do you plan to divide that budget according in the different areas where the budget is going to go? Different genres. Yeah, genres and different aspects like traveling, food, etc. Right. So when I did a groundwork with the contingent leader in the current G6, they told me कि how the different vertical, again the whole budget is not allowed to be set by me, but let's say X amount जो भी traveling और इस सब का जाता है, they have given me the tips कि how to get a cheaper travel by the train. जो भी हम वेंडर बुकिंग ये सब करते हैं उसी जगह हम डायरेक्ट करें और फिर पूरी मूवी बुक करें तो फिर उससे ईजियर पड़ता है, हम ट्रैवल में वहाँ कट थ्रू कर सकते हैं. प्लस इस बार भी कहीं कहीं जॉनरास में कहीं कहीं पर बजट का कमी रहा था जिसको विल ट्राई टू फुलफिल कि किस किस वजह से रहा था एंड अगर इट्स लेजिट रीजन तो विल इंक्रीज दैट साइड एंड या देयर वोंट बी एन इशू इन द बजट फॉर द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. Does anyone else want to ask a question? Last 30-second call. Okay, let's conclude the Q&A section of this soapbox. As we are coming to the end of it, I would like Aditya to give the closing statement. You have a maximum of 2 minutes for your closing statement. Go ahead. Hi. Thank you everyone. आप सभी का यहाँ पर आने के लिए. Thank you panelists. Thank you Insight. Thank you Mike दादा. Since मेरा हमेशा से एक बिलीफ रहा है कि कल्चरल्स किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से नहीं बनता, कल्चरल्स किसी भी एक कल्चरल क्लब रूम से नहीं बनता, कल्चरल्स किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से नहीं बनता. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि कल्चरल्स आज भी IIT में जिंदा है तो वो आप लोगों की वजह से है जो कल्चरल्स को आज तक जिंदा रखते हैं. एंड
इफ इलेक्टेड एज अ जीएस, मैं आप लोगों का सर्वेंट बनने आया हूँ। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स में, आप लोगों की उम्मीदें और मैं आप लोगों ने जो जो सोचा था IIT बॉम्बे कल्चर्स के बारे में, उस सबको पूरा करने आया हूँ। As my vision in clear words, I want culturals to learn from its beautiful past, adapt those in present, and together we can brighten up the future. From my 3 years life in the institute, it made me realize कि culturals में बहुत सारा immense potential है, but कई सारे existing gaps भी है जो हमको भरने हैं. Since with this vision, I am aiming to revise traditions, redefine culture, and rise together. I want all your support for this. I urge you all to read my manifesto, to engage in my vision, and to make a informed choice. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Aditya. All the best for your election. I would like to thank the audience for coming. I would especially like to thank the panel. And this concludes the soapbox for candidate of General Secretary of Cultural Affairs. Thank you all. Have a good evening.